equation of a line passing through a point and parallel equation of line passing through a point E x1 y1 z1 and x1 y1 z1 and parallel to a given vector B. Equation of a line passing through a point x1 y1 z1 and parallel to a given vector B. हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. This is y x axis, y axis, z axis. Suppose this is any line जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. This line is passing through a point A and coordinate of A are x1, y1 and z1. Point A point के coordinate क्या हैं? x1, y1, z1. And this is any vector B, right? This is any point P and coordinate of P are x, y and z, right? A is any point, coordinate of A are x1, y1, z1. B is a vector parallel to the line, right? हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. A पॉइंट को हम suppose this is vector A. This is O point origin 0, 0, 0 and A vector is this vector, OA vector. So vector A is known as position vector of point A. A point के coordinates हमें given है x1, y1, z1, right? Point A is known as passing point of line. Point A को क्या कहा जाएगा? Passing point of line. And x1, y1, z1 are coordinate of passing point. Vector A will be A point का position vector है vector A. So vector A क्या होगा? x1i, y1j plus z1k. Vector A is equal to x1i plus y1j plus z1k. A vector is this, right? Vector A को हम क्या कहेंगे? Vector A is position vector of passing point. Passing point. Vector A क्या है? Position vector of passing point. B is any vector parallel to the line. B हमें एक vector दिया हुआ है line के parallel. Suppose B vector is AI cap BJ cap plus CK cap. Vector क्या है ये? Vector parallel to the line. ABC, small ABC are direction ratios of line. ABC are direction ratios of the line, right? Now suppose position vector of P point with respect to origin is vector R. So vector R will be
vector r will be xi plus yj plus zk. This will be vector r. Now this is vector a, this is vector r, this is a point, this point is p, this is ap vector. अब हम ओ ए पी यहाँ पर ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं. देन ए ओ बी पी ट्राइंगल है हमारे पास, और यहाँ पर हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ वेक्टर ए प्लस ए पी वेक्टर ओ ए वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर, और यू कैन से ओ पी वेक्टर. अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए पी वेक्टर. ट्राइंगल लॉ में हमने किया था इफ टू वेक्टर्स आर अलोंग टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर. ट्राइंगल का एक वेक्टर हमारा ओ ए के अलोंग है, सेकंड वेक्टर हमारा ए पी के अलोंग है. सो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर will lie along third side of the triangle that is given by OP vector. Also AP vector is parallel to B vector. So AP vector can be written as AP vector is equal to lambda time of B vector. Right? AP vector की जगह हम क्या लिख सकते हैं? Lambda time of B vector according to definition of collinearity. Collinearity में हमने यही किया था, एक वेक्टर अगर दूसरे की collinear है तो one vector is equal to lambda time of other vector. So OP vector according to this triangle OP vector is R vector. R vector is equal to OA vector. OA vector is A vector plus AP vector. AP vector को हम क्या लिख सकते हैं? Lambda time of B vector. Right? This relation is known as, this equation is known as vector equation of लाइन. ये हमारी इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन होगी. राइट? अब इस वेक्टर इक्वेशन को अगर कार्टेशियन में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर. नाउ व्हाट इज आर वेक्टर? आर वेक्टर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की. आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप plus zk cap minus what is a vector? A vector is x1i plus y1j plus z1k. x1i cap y1j cap z1k cap is equal to lambda time of b vector. What is b vector? B vector is this lambda time of ai plus bj cap plus ck cap. AI cap BJ cap plus CK cap. Right? Now combining these two xi and x1i, so it will be x minus x1 into I. Right? X minus x1 into I, yj and this will be y1j. So y minus y1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, इट विल बी y माइनस y1 प्लस y माइनस y1 इंटू j, देन zk एंड दिस इज z1k. तो z माइनस z1k प्लस z माइनस z1k. दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं a इंटू लैम्डा आई, lambda bj and lambda ck.
this is equal to lambda time of ai lambda time of bj plus lambda time of ck. Comparing coefficient of I on both sides, so x minus x1 is equal to a lambda, right? So x minus x1 upon a is equal to lambda, right? Next, y minus y1 is equal to lambda b, y minus y1 upon b is equal to lambda. And next is z minus z1 upon, this is equal to c lambda, z minus z1 upon c is equal to lambda. x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. This implies ये सभी lambda के equal है. So क्या होगा? According to this, x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b and z minus z1 upon c. क्योंकि all these are equal to lambda, so ये सब equal होंगे. This is equal to lambda, right? This implies this equation is known as Cartesian equation of line. This is known as Cartesian equation of line. Now originally हमारे पास x1, y1, z1 क्या थे? x1, y1, z1 are coordinate of passing point के coordinates, and ABC are direction ratio of vector b vector. ABC क्या है? Direction ratios of vector b. Line के parallel जो vector given है उसके direction ratio. Since vector and lines are parallel, direction ratio will be proportional. So these three numbers are proportional to direction ratio of the line. Hence these are known as direction ratio of the line, right? So in this Cartesian equation, x1, y1, z1 are coordinate of passing point. Line जिस point से pass करती है उसके coordinates हैं. ABC are known as direction ratios of the line, right? So we have vector equation r is equal to a plus lambda b, and Cartesian equation is x minus x1 upon a, y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. ये दोनों equation आपको learn करनी है. In this vector equation, a vector is position vector of passing point. Vector A is position vector of passing point A, and B vector is vector parallel to the line, right? A और B आपको लर्न करने की क्या है? यहाँ पर भी आपको x1, y1, z1 और ABC के बारे में पता होना चाहिए. इस फॉर्मूले पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं. राइट, तो दो टाइप की इक्वेशन हमने लर्न किया है. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर, एंड कार्टेशियन इक्वेशन इज x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी. ये कार्टेशियन इक्वेशन है. Right, next exercise 11.2. Question number 4. Question number 4 is equation of line passing through 1 to 3. हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है.
लाइन पर कहाँ से पास करती है, 1 2 3 पॉइंट से पास करती है। तो इस 1 2 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, इसको हम पॉइंट ए से डिनोट करेंगे 1 2 3। दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, लाइन जिस पॉइंट से पास करती है। एंड पैरेलल टू द वेक्टर इज दिस, हमें लाइन के पैरेलल एक वेक्टर गिवन है। लाइन के जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको हम बी से डिनोट करते हैं। सो वेक्टर पैरेलल टू द लाइन, वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i plus 2j minus 3i plus 2j minus 2k, 3i plus 2j minus 2k, राइट। हमें लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है। इन दैट वेक्टर इक्वेशन a point, coordinate of a point are 1 2 3 and b point is a vector parallel to the line। तो वेक्टर इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। इस फॉर्मूले के लिए हमें ए वेक्टर चाहिए। एंड ए वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट इज दिस, सो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए इज आई प्लस 2j प्लस 3k। दिस इज द वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। ऑलरेडी हमारे पास वेक्टर बी है, सो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। दैट इज व्हाट इज आर वेक्टर, आर को हम आर ही रखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू, एंड ए वेक्टर इज आई प्लस 2j प्लस 3k, आई प्लस 2j प्लस 3k plus lambda time of b vector. What is b vector? b is 3i plus 2j minus 2k. r vector is I plus 2j plus 3k plus lambda 3i. This equation is vector equation of line. Suppose हमें यहाँ कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, सो हम इस इक्वेशन को कार्टेशियन में चेंज कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। डायरेक्ट कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम, कार्टेशियन इक्वेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। दिस इज कार्टेशियन। यहाँ पर जो x1, y1 और z1 पॉइंट्स हैं, दोज आर कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे क्या हैं, 1 2 3। सो दीज आर x1, y1 एंड z1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x माइनस x1 इज 1, y माइनस y1 इज 2, z माइनस z1 इज 3 अपॉन ABC। ABC आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। ABC क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पैरेलल वेक्टर। B वेक्टर इज दिस इज B वेक्टर, वेक्टर पैरेलल टू द लाइन। इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, 3 2 माइनस 2। सो डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या होगा, 3 2 माइनस 2। दिस विल बी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, राइट। अगर ये जो वेक्टर इक्वेशन गिवन है इसको देख के आपको कार्टेशियन इक्वेशन चेंज करनी है, सो जो ए वेक्टर है हमारा, दिस इज बी वेक्टर। ए वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो है 1 2 3, इसको आप यहाँ पर लिखेंगे x1 y1 और z1 के जगह। x1 के जगह 1 होगा, y1 के जगह 2 होगा और z1 के जगह क्या होगा, 3 अपॉन में जो b के डायरेक्शन रेशियोज हैं वो डिनोमिनेटर में लिखे जाएंगे, ABC के जगह 3 2 एंड माइनस 2, राइट। तो वेक्टर इक्वेशन से आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कार्टेशियन इक्वेशन को अगर वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम वेक्टर ए फॉर्म करेंगे, ए आई यानी कि आई प्लस माइनस प्लस 2j प्लस 3k, दिस विल बी वेक्टर ए, राइट, एंड प्लस लैम्डा टाइम ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारा यहाँ से जनरेट होगा 3i प्लस 2j माइनस 2k, राइट। सो वेक्टर इक्वेशन को कार्टेशियन में और कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फिफ्थ क्वेश्चन। Fifth question is,
Equation of line in vector and Cartesian form that passes through. Line is passing through, एक वेक्टर हमें गिवन है, पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम ए से डिनोट करते हैं. सो जो लाइन वेक्टर गिवन है हमें, लाइन जहाँ से पास करती है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर गिवन है. सो इट विल बी वेक्टर ए, राइट. वेक्टर ए इज 2i माइनस j प्लस 4k, राइट. लाइन इस पॉइंट से पास करती है, मीन दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट, दैट इज ए वेक्टर. एंड इन डायरेक्शन ऑफ दिस, लाइन किस डायरेक्शन में है? लाइन इज ऑलवेज इन डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर. लाइन किस वेक्टर की डायरेक्शन में होती है? बी वेक्टर की डायरेक्शन में होती है. यहाँ पर हमें एक वेक्टर दिया हुआ है लाइन जिसकी डायरेक्शन में है. सो दैट विल बी द वेक्टर बी. सो बी इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज i प्लस 2j माइनस के, i प्लस 2j माइनस के. ये हमें एक वेक्टर दिया है कि लाइन इस डायरेक्शन में है, and line is always in direction of b vector, so it is b vector, right. Now vector equation of line, ये a and b दोनों वेक्टर में गिवन है. वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन is r vector a vector plus lambda time of b vector. r vector is equal to, what is a vector? 2i minus j plus 4k plus lambda time of, what is b vector? I plus 2j minus k. This will be the vector equation of line. Now we have to find Cartesian equation of line. Line की Cartesian equation क्या होगी? Cartesian equation of line is this. Cartesian equation of line, x minus x1 upon a, y minus y1 upon b, z minus z1 upon c. इसमें जो x1 y1 z1 है, दोज आर कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट. अगर हमें पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो डायरेक्टली हम x1 y1 z1 यूज कर सकते हैं. अगर पासिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है तो पोजीशन वेक्टर में जो उसके डायरेक्शन रेशियोज है, दोज आर कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट. पोजीशन वेक्टर में i j k के जो कंपोनेंट है, यानी कि इस a वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं, दोज आर कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट. सो यहाँ पर पासिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2, -1 एंड 4, 2, -1 एंड 4. एंड b वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो हैं i, 2j माइनस k, इसमें जो b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो है 1, 2 एंड -1. दीज आर 1, 2 एंड -1, these are ABC, direction ratio of parallel vector. So ABC के जगह हम क्या यूज करेंगे? 1, 2 एंड -1. x1 y1 z1 के जगह हम यूज करेंगे 2, -1 एंड 4. So Cartesian equation of line will be x minus 2 upon y minus -1 होगा is equal to z minus 4 upon, what is a is 1, b is 2 and c is -1. 1, 2, -1 implies x minus 2 upon 1, y plus 1 upon 2, z minus 4 upon -1, right. This will be Cartesian equation of the line. Fine. It was fifth question, question number 5. Next we will do sixth question. क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप. क्वेश्चन 6 में हमें दिया हुआ है फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस, और दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट आर -2, 4, -5, -2, 4, -5 and parallel to, line is parallel to x plus 3 upon 3, x plus 3 upon 3 is equal to y minus 4 upon 5 is equal to z plus 8 upon
6, right? ओके, हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. दैट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू दिस लाइन. इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास है x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 is equal to z plus 8/6, and we have to, this is L1. Suppose L2 is another line जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है. Line L2 is passing through point A and coordinate of A point are 2, 4, -5. लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास x1, y1, z1 कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट होने चाहिए एंड A, B, C डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन होने चाहिए. अब कोऑर्डिनेट ऑफ पासिंग पॉइंट है हमारे पास, डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन नहीं है. बट इन केस व्हेन लाइंस आर पैरेलल, टू लाइंस आर पैरेलल, देन देयर डायरेक्शन रेशियो विल बी आइदर प्रोपोर्शनल और सेम. सो यहाँ पर हम इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या अज्यूम कर सकते हैं? प्रोपोर्शनल टू दीज, दैट इज 3 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा. यानी कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो क्या होंगे? 3 लैम्डा, 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा. And if we have direction ratio and coordinate of passing point both, then applying this we can find equation of the line. So Cartesian equation of line L2, therefore Cartesian equation of required Cartesian equation of line is x minus x1 coordinate of A point, passing point के coordinate x minus 2 is equal to upon y minus y1. y1 is 4 is equal to z minus z1, z plus 5. This will be minus minus plus, so it will be x plus 2 upon ABC direction ratio of the line. Direction ratio of the line are 3 lambda, 5 लैम्डा एंड 6 लैम्डा. लैम्डा आप हर जगह से कैंसिल कर सकते हैं. इम्प्लाइज x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 5/6. दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. ये हमारी लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन होगी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. Cartesian equation of line is x minus 5/3 is equal to y plus 4/7 z minus 6/2. लाइन की हमें कार्टेशियन इक्वेशन फाइंड करनी है, गिवन है, एंड हमें लाइन की वेक्टर इक्वेशन फाइंड करनी है. ठीक है. बेसिकली द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन इज दिस. अगर इसको हम कंपेयर करें, x1 इज -5, 5, इसको हम लिख सकते हैं y माइनस -4. सो y1 क्या होगा? -4, राइट. y1 इज इक्वल टू -4, z1 इज इक्वल टू 6. कंपेयरिंग दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन. सो x1 इज 5, y1 विल बी -4, z1 will be 6, and a is equal to 3, b is equal to 7, and c is equal to 2. Also we know that vector equation of line is this. Vector equation of line is r is equal to a plus lambda b, जिसमें a vector is position vector of passing point, that is x1 I y1 j plus z1 k. So according to this x1 I plus y1 j plus z1 k, a vector will be 5i minus 4j plus 6k. a vector हमारा क्या होगा?
minus 5 5 plus 4j plus 6k, and b vector is 3i plus 7j plus 2k, 3i plus 7j plus 2k. This is b vector. So vector equation of line r vector is equal to a vector plus lambda b vector. r vector is equal to a vector plus lambda b vector. ठीक है, that is r vector is equal to, now what is a vector? A vector is 5 5 minus 4j plus 6k, 5 5 minus 4j plus 6k plus lambda time of b vector. B vector is this vector 3i plus 7j plus 2k, 3i plus 7j plus 2k. This is vector equation of the line, right? Next is vector equation of, so अभी हमने किया है vector equation of a line passing through a point whose coordinate are x1 y1 z1 and parallel to a vector b. Vector b is ai plus vector b is ai plus bj plus ck, right? So vector equation is r vector is equal to a vector plus lambda b, and Cartesian equation is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c. ये दोनों इक्वेशन आपको लर्न करनी है. नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स. यहाँ पर हमें एक पासिंग पॉइंट गिवन था और एक लाइन के पैरेलल वेक्टर गिवन था. नेक्स्ट जो इक्वेशन है next is vector equation of line passing through 2 points. A point is x1 y1 z1 and b x2 y2 z2. हम एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो लाइन 2 पॉइंट से पास करती है, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 हैं.